right? And okay, so else we can do now? We can just start a live server once again. Okay, and let us see the output now. We have got this. Let us inspect now and go in the console. See, now it's been working. Can you guys able to hear me now? Yes. So sorry for the interruption. Network issue tha. It might be due to my network issue. Can you guys able to see me and hear me? Yes, guys. Why is it happening so in our today's class? Fine, no worries. Okay, so कहाँ तक आपको समझा था? Do while loop का syntax have everyone got it or should I explain it once again? Fine, no worries. Let us revise it once again and see it, and let us see how the output has been printed. Fine. हाँ, तो यहाँ पर as I have said, initialize is the first part, right? Your do while loop will be executed for the at least for the one time, right? यहाँ तक तो सबने देखा था, right? Then the second part is the same. वहाँ पर हमें जो भी आपको काम करना है वो करना होता है. Later then at the end आपको क्या करना है? Either you want to increment or decrement it, right? So I will just print this I am working for the 10 time, right? Why it will print for the 10 time? Reason is we are starting it from 1, राइट एंड यहाँ पर हम इसको इंक्रीमेंट करें बाय 1, राइट. ओके, एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 10. इज इट सो राइट. ओके, यहाँ पर इंक्रीमेंट होके फिर 2 होता है, सॉरी नॉट 1. डायरेक्टली फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पर हमारा 1 विल बी दिस आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट विल बी 2. इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 10? yes it is. Then again it will start its execution, right? So it will go again and again till I value get more than 10. okay, once I ith वैल्यू गेट 11, ओके, मतलब हमारा जब आई वैल्यू 10 होके अपडेट हो जाएगा टू 11, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पर जो भी आपने कंडीशन लिखा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ओके, एंड वंस इट गेट फॉल्स, वो वहां पर वापस ऊपर जाके आपका एग्जीक्यूशन नहीं करेगा. इट विल बी डायरेक्टली टर्मिनेटिंग इट वर्क हियर एंड लेटर इट विल बी restarting, that is resuming it work from the next line itself. okay, so वहां पर वो क्या कर रहा है? 45th लाइन से यहाँ पर जो भी हमने उसको वर्क बोला था, it has been printed that do while loop has been ended. okay, so 10 time this I am working will be printed out. fine, and later at the end हमारा क्या होगा? do while loop will be ended, will be, this statement will be this मतलब printed out हो जाएगा, right? so let's go and see it. so see, I am working has been printed for the 10 time, right? and at the end हमारा do while loop ended has been printed out, right? so in this way our do while this statement work out. fine, now let us see the third loop, which is the for loop, and which we will be using for the most or we can say favorable number of times. fine, okay, so let's go and say it. so basic syntax for this for loop is, I just say the for loop over here, right? The basic syntax is you have to write a for. यहाँ पर जैसा आप इनिशियलाइजेशन बाहर करते थे, राइट, कंडीशन आप मतलब कंडीशन तो अंदर ही चेक करते थे, वेरेज आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पर करते थे? उसके बॉडी के अंदर करते थे, राइट? बट फॉर लूप में वन वी हैव गॉट दिस एडवांटेज ओवर हियर, हम फॉर लूप में मतलब जो भी चीज कर रहे हैं वो इनसाइड दिस आपके जो कर्ली वी कैन से दिस कर्व पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, इसके अंदर आप कंडीशंस एंड इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अपडेशन करोगे. फाइन, एंड उसके बाद आपका जो भी बॉडी होगा उस पर आपका जो भी आपको काम करना है वो करोगे. ओके, सो आई कैन से इन आई इक्वल्स टू 1, राइट? टिल द टाइम आपको कंडीशन लिखना होता है. आई वांट टिल द टाइम इज माय आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10. ओके, आई वांट टू इंक्रीमेंट इट, राइट? फाइन, व्हाट्स बीन सेड, आई it's been expected this expected dot really is my this int I equals to 1 initialization किया. okay, let's console this log. I am working. Initialize has been done over here. Let us initialize it outside and see why is it so. I करना है, right? and हम यहाँ पर initialization करते हैं int I, right? int so sorry यहाँ पर let होगा, int is not been done. okay, मैं जावा के अंदर चला गया. okay, so first one is the initialization part, right? so I have said that let I equals to 1, okay,
एंड लेटर व्हाट इज बीन सेइंग, हमारा कंडीशन है जो हमने कंडीशन लिखा था, हमें क्या करना है, हमें आई एम वर्किंग, आई वांट टू प्रिंट इट फॉर द 10 टाइम, राइट। सो फॉर दैट कंडीशन हमने क्या किया, आई का वैल्यू टिल द टाइम हमारा आई का वैल्यू लेस देन है और इक्वल्स टू 10 है, मुझे ये काम करते ही रहना है, राइट। सो आपका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, पहला आपका इनिशियलाइजेशन होगा यहाँ पर, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा, फिर आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसके बाद आपका ये जो भी बॉडी है इसके अंदर आपने जो भी काम बोला रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड एक फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद आपका वापस इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, देन अगेन योर बॉडी विल बी दिस, what it will be this in working out, right? Fine. So how it will be working, I is my I less I is 1, right? Initialize, we have initialized I to 1, right? So now it will checking, is my I less than equals to 10? Yes it is. Then what it will be doing, it will be going over here and printing it, okay, and it's been printing कि I am working. Fine. After this आपका इंक्रीमेंट होगा, फाइन, आई का वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर वो चेक करेगा, इज माई 2 लेस देन इक्वल्स टू 10? यस इट इज। देन यहाँ पर इट विल बी प्रिंटेड क्या, दिस जो भी हमने बोला है कि आई एम वर्किंग, परफेक्ट। सो इट विल बी गोइंग अगेन एंड अगेन टिल द टाइम हमारा आई का वैल्यू आपका जब 11 हो जाएगा, ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर आपका चेक करा जाएगा कि इज माई 11 लेस देन इक्वल्स टू 10? नो इट इज। तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉपी दिस स्टेटमेंट फ्रॉम योर एंड वी कैन पेस्ट इट ओवर, सो दैट हमारा ये समझ में आएगा हमारा लूप खत्म हो गया, राइट। आई हैव सेड द फॉर लूप हैज बीन एंडेड। सो नाउ this I am working will be printed for the 10 time. You see, it has been printed for the 10 time, and later the for loop has been ended. So let us go and see the once again the syntax of it. Okay, so for loop के अंदर आपको क्या करना होता है, पहला टाइप तो इनिशियलाइजेशन, राइट। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको कंडीशन देना होता है, ओके, नॉट दिस कंडीशन, राइट। फिर उसके बाद आपको इधर इंक्रीमेंट करना होता है तो उसको डिक्रीमेंट करना होता है, राइट। तो दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स ऑफ राइटिंग द फॉर लूप, ओके। सो आपने क्या किया, पहला इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पर आई से हमें किससे इनिशियलाइज किया, आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया, राइट। फिर उसके बाद हमने कंडीशन लिखा, क्या कंडीशन लिखा है, टिल द टाइम माई आई इज लेस देन इक्वल्स टू टाइम आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस 1 by 1, राइट। एंड लेटर मुझे उसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करने का है, सो दैट हमारा इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए, ओके। सो हमारा अभी क्या होगा, आपका ये जो भी आपने काम इसको असाइन किया, इट विल एग्जीक्यूट इट फॉर द 10 टाइम, राइट, एंड लेटर इट विल बी प्रिंटेड आउट ओवर हियर, ओके। मतलब जो भी आपका इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद फॉर द 10 टाइम वंस दिस लूप हैज बीन एंडेड, मतलब जब आपका आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, राइट, तो ये आपका पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, परफेक्ट, ओके। उसके बाद आया आपका प्रिंट आउट हो जाएगा जो भी आपने नीचे काम उसको बोला होगा, राइट। सो नाउ I am working will be printed for the 10 time, as you can see over here, right, and your for loop has been ended, has been executed, and it's been printed out in a console, right. So for loop will be working in this way, right, and यहाँ पर why we will be using the for loop again and again, because यहाँ पर हमें एक ही जगह पर सब काम करना होता है, रेदर देन जैसे हम डू वाइल लूप में अलग अलग जगह करते हैं, राइट। वाइल लूप में भी हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज अलग जगह करेंगे, फिर वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, राइट, उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं इनसाइड दी बॉडी, राइट। बट फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में एक ही जगह पर आपको सभी चीजें लिखनी होती है, राइट, ओके, दैट इज इनिशियलाइजेशन, राइट। इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हो, मतलब आई मीन आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि लेट आई, और यहाँ से आप उसको हटा सकते हो, ओके। सो यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर लिया है आई को, ओके। बट ये बेस्ट कंसर्न इज यू कैन डायरेक्टली डू इट ओवर हियर एंड यू कैन यूज इट रेदर देन राइटिंग इट ऑन द टू लाइन, ओके। सो हमने क्या किया, पहले उसको इनिशियलाइज कर दिया, right, then later we have check it is my 1 less than equals to 10, and later what we have done, we have just printed out, and later हमारा वापस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा टिल द टाइम हमारा ये जो भी कंडीशन है फॉल्स ना हो जाता, राइट। सो आई होप आपको ये तीनों लूप कैसा वर्क होता है, इट्स बिन हैव एवरीवन गॉट इट गाइस। हाँ ओके, आज डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, फाइन, इवन आई कैन अंडरस्टैंड क्या थोड़ा नेटवर्क इशू है एट माई एंड, ओके। सो प्लीज डू कॉपरेट फॉर टुडे, फाइन, ओके। सो आई होप सबको समझा होगा हाउ इज दिस लूप वर्किंग, यस, ओके। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी कि हमारा द टास्क विच वाज लूप्स देखा था यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास था जंप स्टेटमेंट्स, राइट। सो लेट मी ब्रिंग आउट फॉर यू, इट्स बीन दिस, ओके। सो हमारा लूप्स हो गए,
लूप्स के बाद हमारा क्या था, जंप स्टेटमेंट था, जंप एंड दिस वन कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ओके, एंड लेटर वी वर हैविंग द फंक्शंस, राइट। ओके, ये इतना करते हैं बिकॉज एरे नहीं करते हैं, बिकॉज इट वुड बी टू लेट फॉर टुडे। फाइन, सो आज जंप एंड कंटिन्यू क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, नाउ अज्यूम आपको क्या करना है, सी आई विल बी यूजिंग द फॉर लूप इटसेल्फ एंड आई विल मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस वर्किंग, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सी आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, just have a note of this problem statement हमें क्या दिया है, the we have to print the number from 1 to 10, right, but as soon as I encountered 5 मुझे हमारा लूप ये करना है, तोड़ देना है, ओके, बट हमारा जो भी कंडीशन है वो 10 तक चलेगा, बट हमें क्या करना है, as soon as I get 5 हमें वो फॉर लूप के बाहर आना है, ओके। सो व्हाट आई मीन टू से, मुझे 1 to 5 प्रिंट करना है, ओके, बट हमारा कंडीशन कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, ओके। सो लेट्स गो एंड सी द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज जंप। जंप क्या होता है, जैसा उसको कंडीशन मिलेगा ना वो आपका लूप को तोड़ देता है, ओके। सो जो भी आपका लूप का एग्जीक्यूशन है वो तोड़ देगा एंड इट विल कम आउट ऑफ योर लूप, ओके। सो आई एम सेइंग सी, मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग आई, ओके, इफ आई विल चेक ओवर हियर कि इफ माय आई वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम आई वांट टू ब्रेक माय लूप, ओके। से ब्रेक स्टेटमेंट उसके लिए यूज होता है, तो जंप में हमारे पास होता है बेसिकली ब्रेक, ओके, जो हमारा एक एग्जीक्यूशन ब्रेक करने के लिए तोड़ मतलब आपको पूरा आपका लूप तोड़ने के लिए काम आता है, राइट। एंड कंटिन्यू क्या करता है, एक सर्टन इटरेशन आपको स्किप करना होगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन यूज कंटिन्यू, ओके। सो जंप स्टेटमेंट में हमारा पहला देख रहे ब्रेक वन, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आपको एक कंडीशन मिला, मतलब अभी समझो आपने कंडीशन क्या लिखा है, इफ माई आई वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को लूप के बाहर आ जाना है, ओके, मुझे लूप में वापस नहीं जाना है, मेरे को ये चेक नहीं करना है कि इज माई आई लेस देन इक्वल्स टू 10, मुझे वो चेक ही नहीं करना है। पहला तो क्या होगा, आई को इनिशियलाइज किया हमने 1 से, राइट, तो यहाँ पर जाके वो प्रिंट हो जाएगा 1, ओके। लेटर इट विल बी चेकिंग ओवर हियर, यहाँ पर आपका चेक होगा इज माई आई इक्वल्स टू 5, नहीं है तो आपके इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं, फिर यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज माई 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, येस इट इज, तो कंसोल में हमारा प्रिंट हो जाएगा 2, राइट। फिर उसके बाद वापस इफ कंडीशन में चेक होगा कि इज माई दिस 2 इक्वल टू 5, नो नॉट इट इज, तो हमारा प्रिंट दिस इट विल नॉट, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया तो नथिंग, देन इसके बाद आपका वापस यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा, परफेक्ट, राइट। फिर वो इंक्रीमेंट होने के बाद वापस ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, इज माई 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, येस इट इज, तो वापस वो प्रिंट करेगा एंड आफ्टर प्रिंटिंग इट यहाँ पर चेक हो जाएगा, इज माई 3 इक्वल्स टू 5, नो इट इज, तो यहाँ से हमें इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं जब तक आपका ये ट्रू नहीं हो जाता, राइट। तो वहां पर वो क्या कर देगा, 3 को इंक्रीमेंट करके 4 हो जाएगा, इज माई 4 इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10, येस इट इज लेस देन, सो यहाँ पर अंदर जाएगा एंड इट विल प्रिंट इट 4 ओवर हियर, अगेन यहाँ पर इफ कंडीशन में चेक होगा कि इज माई 4 इक्वल्स टू 5, नो इट इज, तो ये इफ कंडीशन में चेक जाएगा नहीं, राइट। अगेन हमारा आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 5, इज माई 5 लेस देन इक्वल्स टू 10, येस इट इज, तो हमारा इधर प्रिंट हो जाएगा 5, और इफ कंडीशन में आएगा, इफ कंडीशन में अभी हमारा आई का वैल्यू क्या हो गया 5, तो अभी हमारा ये चेक होगा, इज माई 5 इक्वल्स टू 5, येस इट इज, तो ब्रेक जो भी आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, आपका फॉर लूप उसको तोड़ देगा, राइट। उसको आपको क्या करेगा, वो पूरा ब्रेक कर देगा, जैसा आपको नाम से ही समझ रहा हो रहा है, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, बेसिकली आपका जब ये होता है, मतलब आपका एक कौन सा भी लूप आपको एक बेसिक कंडीशन पे, मतलब एक आपका जो भी कंडीशन है वो कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे आपको लूप उसको तोड़ देना है, मतलब उसी टाइम पर आपको एग्जीक्यूशन का स्टॉप करना है, राइट। सो एट दैट कंडीशन यू विल बी यूजिंग दिस स्टेटमेंट दैट इज ब्रेक। सो नाउ यू कैन सी हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 एंड 5 होने के बाद हमारा ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। आई विल बी सेइंग console dot log our loop ended, okay, so I can say our loop ended over here, okay। so आपका प्रिंट होगा 1 to 5, उसके बाद your our loop ended will be printed, okay। so let's go and see the output over here, so see 1 2 3 4 5 and our loop ended, okay। so ये वर्क कैसा करता है, जैसे ही आपका ब्रेक मिलेगा ना, आपका ब्रेक आपका वर्ड मिलेगा, राइट, सो इट ऑलवेज हेल्प क्या हमें एक बेसिक कंडीशन, मतलब जो भी आपका कंडीशन है वो कंडीशन वो सेटिस्फाई होगा ना, तो आपका वो जो भी लूप होगा उसको पूरा ब्रेक कर देगा, ओके, और वो लूप से आपका बाहर आ जाएगा,
ओके, इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल लूप, पूरा लूप का एग्जीक्यूशन बंद करता है। ऐसा ही नहीं क्या वो एक सर्टेन इटरेशन को ही बंद कर देगा, पूरा एक इटरेशन को नहीं बंद करता, वो पूरा लूप को ही तोड़ के आपका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड फॉर डेट कंसर्न हमारा क्या हुआ है यहाँ पर 5 पर, मतलब हमारा 5 प्रिंट होने के बाद 1 to 5 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होके हमने हमारा लूप को ब्रेक कर दिया है। ओके, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, एंड फॉर डेट कंसर्न हम उसको जंप स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं सॉरी, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली एक कंडीशन के बाद हम पूरा मतलब हमारे लूप से जंप कर रहे हैं, राइट, वी आर जंपिंग फ्रॉम ईयर टू डायरेक्टली ईयर। ओके, एंड फॉर दैट कंसर्न व्हाट वी कॉल दिस ब्रेक स्टेटमेंट एज एन जंप स्टेटमेंट। ओके, इन वेरियस कंटिन्यू भी ऐसे ही वर्क होता है, बट इट्स बिन डिफरेंट, वो करंट एग्जीक्यूशन बंद करता है। ओके, लेट अस सी दैट एज वेल। तो ब्रेक क्या करेगा, आपका जो भी आपका लूप है वो उसको ब्रेक कर देगा। ओके, इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन एट दैट टाइम। ओके, एंड उसके बाद वो आपका जो भी आपने उसके बाद जो लूप के बाद आपका जो भी आपका काम होगा वो उसका काम करना चालू करेगा। गॉट इट? सो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, परफेक्ट है। उसके बाद एज सुन एज आई का वैल्यू 5 हुआ तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि आपका जो भी ये लूप है उसको हमें तोड़ना है। ओके, आई जस्ट वांट टू ब्रेक इट, परफेक्ट, तो आई विल ब्रेक इट फ्रॉम हियर, फाइन, एंड लेटर जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा नीचे का यू विल जस्ट डू इट ओवर हियर, फाइन। सो फॉर दैट कंसर्न हमें क्या हुआ 1 to 5 प्रिंट होके आपका दिस या आर लूप हैज बीन एंडेड हैज बीन प्रिंटेड ओवर हियर, राइट। सो हमें 1 to 5 आया और आर लूप हैज बीन एंडेड, फाइन। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमें ये यूज कर होता है कि आपको जब एक सर्टेन कंडीशन पे आपको लूप को एग्जीक्यूशन जो भी आपका लूप है उसका एग्जीक्यूशन बंद करना है। ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, आपको एक सर्टन इटरेशन स्किप करना है। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से दैट इट्स लाइक दिस। ओके, तो हम अभी कंटिन्यू का देखते हैं। ओके, व्हाट आई विल बी सेइंग कि सी अभी आपका आउटपुट आएगा, सी कैसा वर्क होगा, आई विल बी सेइंग ओवर 1, यहाँ पर आपका चेक होगा इज माई 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज। सो यहाँ पर जाके पहले वो चेक करेगा इज माई 1 इक्वल्स टू 5, नो इट इज, तो वो वर्क होगा, यहाँ पर इसको जाके प्रिंट आउट होगा, राइट, इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, राइट। फिर सेकेंड टाइम वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट। फिर 2 में भी वापस इफ कंडीशन में जाएगा, वो चेक करेगा इसमें 2 इक्वल्स टू 5, नो नॉट इट इज, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, राइट, फाइन। उसके बाद वहां पर हमारा 2 प्रिंट आउट हो जाएगा, फाइन। बट नाउ कंसिडर का आपका आई का वैल्यू हो गया 5, सो ड्यूरिंग दैट टाइम इज माई आई इक्वल्स टू 5, यस इट इज, तो वो करंट इटरेशन को स्किप करेगा, करंट इटरेशन को स्किप करेगा। देखो आपका ब्रेक क्या करता है, अगर मेरे को आपको समझाना हो तो व्हाट ब्रेक डू, ब्रेक विल क्या करेगा, इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ होल लूप, ऐसे स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ होल लूप, पूरा लूप का वो क्या कर देगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। ओके, एंड दिस कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट व्हाट इट विल डू, इट विल स्किप करंट इटरेशन। ओके, सो क्या करेगा, इट विल स्किप करंट इटरेशन। तो अभी आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड दिस इज एज सुन एज आई एनकाउंटर्ड 5, मैंने क्या बोला कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे का कुछ एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, वो डायरेक्टली स्किप कर देगा इटरेशन और आई का वैल्यू कर देगा 6, समझ रहे हो। ओके, एंड आफ्टर दैट वो 6 को प्रिंट करेगा, 7 को प्रिंट करेगा, 8 को प्रिंट करेगा, 9 10, और उसके बाद हमारा आर लूप एंडेड विल बी प्रिंटेड आउट। ओके, सो लेट अस सी 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 नहीं आया, बिकॉज आई हैव सेड क्या वो करंट इटरेशन को स्किप कर देता है, राइट। एंड देन 6 7 8 9 10 एंड देन आर लूप हैज बीन एंडेड। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपका पूरा लूप को ही तोड़ देगा, राइट। एंड कंटिन्यू क्या करेगा, इट विल जस्ट स्किप दैट करंट इटरेशन, जो आपका कंडीशन दिया रहेगा ना वो करंट इटरेशन को सिर्फ स्किप करेगा, उसके बाद वो अपना काम करते ही रहेगा टिल द टाइम हमारा ये जो भी कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाता। फाइन, तो आई होप आपको ये जंप कंडीशन दोनों समझ में आया होगा, ब्रेक एंड कंटिन्यू। यस, हैव यू गाइज एबल टू गेट इट? यस गाइज, हैव एवरीवन गॉट दिस जंप स्टेटमेंट दैट इज द ब्रेक एंड कंटिन्यू? यस, ओके। सो ब्रेक क्या करता है, आपका पूरा लूप को ही तोड़ देगा, राइट। एंड वेयर एज आपका दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, इट विल जस्ट कीप आउट द करंट इटरेशन, फाइन।
Now let us move ahead and see the functions, right? What do I mean by the function? Okay, now द वर्क इज हमारा क्या होता है, लूप क्या करता है आपका सेम चीज, अगर आपको एक काम बार बार करना होगा राइट, सो आप डायरेक्टली लूप में डाल के आपका अपना काम करवा देते हो राइट. बट नाउ व्हाट आई वांट, आपका एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड है राइट. ओके, व्हाट आई वांट कि आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है. ओके, नाउ लेट अस से okay, I want to take the number from user and I want to print the number, print the addition of 2 number, this what I want, I just want to print the addition of 2 number again and again, right? I will say num1 equals to this, num1 is num2 is this one. Okay, I will just print out the addition of this both number, right? I can say just say console.log, what it will be, num1 plus num2, right? And output would be, as you have guessed, it would be 30, right? Let's go and see the output here. We have got it over here as 30. yes. okay, so now आपको क्या करना है, वापस num1 num2 को लेना है एंड लेटर आपको वापस एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है. ओके, सो वो आपको बार बार करना है. ओके, सो function are basically used when we want to do, or we can say if you want to write same logic again and again. okay, so हमने अभी क्या किया, if I want to do the sum of 2 number again and again, right? so मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने क्या किया, I have just added it over here and just console, मतलब हमने सिर्फ कंसोल में उसको बता दिया राइट. बट यहाँ पर भी आपको समझो, क्या मैं क्या करूँगा, लेट्स थर्ड वेरिएबल लेके यहाँ पर उसको असाइन कर दूंगा राइट, एंड आई विल प्रिंट इट आउट इट अगेन राइट. अभी मुझे वापस इसको नंबर और मतलब हमें क्या करना है, वापस उसका सम करना है. तो यहाँ पर अभी हमारे पास दूसरा नंबर है. ओके, नाउ माय num1 हैज बीन अपडेटेड टू 50. okay, and now my num2 will be updated to 100. okay, and now I want to do this same thing again and again. okay, I want to do the addition of 2 number again. okay, I'm saying the num1 plus num2, right? And I will just say console.log this sum, right? okay, so अभी पहले टाइम हमारा क्या प्रिंट होगा, 30, एंड वापस हमने num1 एंड num2 को अपडेट करते हैं 50 एंड 100, तो अब हमारा प्रिंट होगा 150. okay, so let's go and see the output here. it would be 30 and 50. तो हमने क्या किया, सेम ही कोड को हमने बार बार लिखा. ओके, सो आपका ऐसा कंडीशन हो, मतलब आपको एक सर्टन ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन यूज करना है, एंड फॉर दैट रीजन विल बी यूजिंग द फंक्शन. ओके, सो फंक्शन है बेसिकली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन, हम क्या करते हैं, हम एक उसका फंक्शन बना देते हैं. ओके, एंड वो फंक्शन को हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉल करते हैं. ओके, सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज दैट, अगर अभी आपको समझो बेसिक एग्जांपल हमने क्या लिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को ले रहे हैं, उसका एडिशन कर रहे हैं. बट अभी समझो आपको क्या करना है, यही एडिशन ऑफ 2 नंबर 10 टाइम्स करना है. तो आप क्या करोगे, ऐसा आप ब्लॉक ऑफ कोड का आप कॉपी करके आप 10 बार करोगे क्या, नहीं. तो एक आपका बेस्ट ये रहता है, दिस वे इज इट, वे क्या होता है आपका, कि आप क्या करोगे, आपका फंक्शन बना दोगे एडिशन ऑफ 2 नंबर को, और वो आप फंक्शन को सिर्फ कॉल करते जाओगे. ओके, डोंट गेट स्कैर्ड, व्हाट डू आई मीन बाय दिस फंक्शन, दिस एंड व्हाट डू आई मीन बाय कॉलिंग द फंक्शन. ओके, विल बी सीइंग इट नाउ, बट डोंट वरी. हम क्या कर रहे हैं, instead of writing the same logic again and again, instead of writing the same block of code again and again, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं. ओके, द फंक्शन इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड that will be executing again and again, जब तक आप उसको फंक्शन, मतलब आप वो उसको कॉल कर रहे हो. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, सो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंक्शन में 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है. ओके, एंड फर्स्ट गोइंग अहेड, हमारा ना फंक्शन 2 टाइप का होता है, यूजर डिफाइन एंड दैट इज द सेकेंड वन इज प्री डिफाइन. व्हाट डू आई मीन बाय दिस यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइन. ओके, जब आप यहाँ पर कंसोल लॉग कर रहे हो, ओके, कंसोल डॉट लॉग आई कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन बनाया है क्या, नहीं. यहाँ पर पहले से हमें एक ये फंक्शन मिला है जो क्या करता है, आपको कंसोल में आई का वैल्यू प्रिंट करता है. बट इन अ बैकएंड जावास्क्रिप्ट वाले, जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स है राइट, व्हाट दे वुड हैव डन, ये प्रिंट करने के लिए ये एक फंक्शन लिखा होगा उन्होंने राइट. और वो फंक्शन को व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव बीन just we are just calling it from here. Okay, so what it would be, I will be seeing this one, that is the first one, because predefined one we just keep on using it. तो फर्स्ट वन तो हमने console.log में देख ही लिया था. whereas जब हम array सीखेंगे राइट,
एरे सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, राइट? तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ विल बी यूजिंग दिस प्री डिफाइंड फंक्शन. ओके, वहां पर जस्ट विल बी कॉलिंग द फंक्शन later and we'll be getting this output. Okay, so for now just skip this predefined one. Okay, and let us concentrate more on this user defined. Okay, so similarly अभी आपका function में ना दो चीज important होता है. Okay, for the important one is you have to define the body of the function. Okay, what you will be doing, you will be defining the body of the function. समझ रहे हो? I'll be saying the body of the function, and second one is you have to call that function. Okay, so how the syntax goes I will make you understand now. Fine. So आपका syntax क्या होता है? पहला आपको function बनाना होता है. फंक्शन का आपको पहला बोलना था इट्स एन फंक्शन, बाद में उसका आपको फंक्शन नाम, आपका वो फंक्शन का नाम देना होता है. ओके, एंड द सिंटैक्स गोज इन दिस वे. इसके अंदर आप अपना पैरामीटर्स पास करते हो, राइट? जैसा हम क्या कर रहे थे, हम कंसोल डॉट लॉग में सम पास कर रहे थे. सम क्यों पास कर रहे थे? बिकॉज हमें उसको प्रिंट करना था, राइट? सो फॉर डेट कंसर्न हमें कंसोल में हमें क्या मिल रहा था, जो भी सम के अंदर वैल्यू होगा, क्या हो रहा था यहाँ पर 150 था, राइट? तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जा रहा था, राइट? सो हम क्या करते यहाँ पर वो वैल्यू लेते, ओके, एंड वहां पर इसके बाद यहाँ पर जो भी हमें काम करना है वो करके उसको प्रिंट आउट करते. ओके, फॉर नाउ समझो, और उसको अभी आपको कॉल करना होगा तो यू जस्ट राइट द नेम ऑफ योर फंक्शन. व्हाट इट इज? इट्स अ फंक्शन नेम, राइट? सो आई कैन जस्ट से आपको वही लिखना होता है, उसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना होता है. ओके, सो दिस इज बेसिक सिंटेक्स हाउ यू राइट योर फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज फंक्शन इज बेसिकली आपका, अगर सेम चीज अगर आपको बार बार करना होगा तो आप क्या कर देते हो, वो एक फंक्शन बना के रख देते हो, और जब भी आपको यूज करना होगा आप उसको सिर्फ कॉल करते हो. ओके, सो फॉर दैट कंसेप्ट विल बी यूजिंग अ फंक्शन. अभी आप क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे दैट विल प्रिंट आउट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, सो उसका सिंटेक्स कैसा है, पहला हमें क्या लिखना होता है, फंक्शन. सो आई विल राइट फंक्शन, उसके बाद आपका फंक्शन का नाम. तो व्हाट फंक्शन वी आर मेकिंग एडिशन फंक्शन, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पर आप उसका ये ले सकते हो पैरामीटर्स. ओके, आपको जो भी आपका मतलब भी दो पैरामीटर आप कॉल करोगे, मतलब यहाँ पर जब आप कॉल करने में आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो यहाँ पर वो रिसीव होगा. ओके, फॉर नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दो पैरामीटर्स लेते हैं, num1 कॉमा लेट num2. Expected this. Okay, we won't have to initialize it here. Okay, we have just got this num1 and num2, and what we can do, we can just have the third parameter over here, that third variable over here, that is sum num1 plus num2, right? And I will just do the console.log sum over here, right? Or else I can say the addition of two numbers is the addition of num1 and num2. I can say addition of number is this. ओके, सो व्हाट इज मीन सेइंग कि हम num1 एंड num2 में दो वैल्यू आएगा, फाइन. और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम वेरिएबल में एडिशन ऑफ बोथ नंबर हैज बीन स्टोर्ड, एंड यहाँ पर हम यहाँ पर जाके कंसोल कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस डू द फंक्शन दिस कॉल, वी कॉल दिस एज फंक्शन कॉल, right? We are just calling the function, right? And how can we call it? We have to just write the name of it, right? Addition, and उसके बाद आपको दो num1 and num2 के लिए हमें दो ये पास करना होगा वैल्यू, बिकॉज num1 में कुछ स्टोर होगा, num2 में कुछ स्टोर होगा, राइट? आई विल जस्ट पास, पहला हमने फंक्शन का नाम लिखना है, राइट? एडिशन आपका फंक्शन का नाम है. आई विल पास 10 and 20. ओके, एंड इसके बाद कैसा वर्क होगा देखो, ये इसके अंदर जाएगा नहीं. जब ये आपका फंक्शन कॉल होगा तो ये एडिशन आपका फंक्शन है, राइट? तो यहाँ से हम इसको जो भी वैल्यू पास करते हैं व्हेन द फंक्शन इज, देखो आर्ग्यूमेंट, हम किसको आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं, आर्ग्यूमेंट. जब ये वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, द वैल्यू दैट इज पास्ड वी कॉल दैट वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट. ओके, सो आई कैन से व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, द वैल्यू दैट इज पास्ड, we call that value as, what we call this value as argument. Okay, so argument क्या होता है, जब आप
फंक्शन कॉल करते हो, जो वैल्यू आप पास करते हो ना उसको आप आर्ग्यूमेंट बोलते हो। ओके, एंड जो आप फंक्शन के अंदर रिसीव करते हो, दिस num1 में क्या रिसीव होगा 10 एंड num2 में क्या रिसीव होगा 20। तो ये फंक्शन मतलब जब आप ये वैल्यू को इधर आके क्या करते हो, स्टोर करते हो, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। देखो आपको इधर ऊपर लिख के भी आ रहा है कि num2 इज एन पैरामीटर, सी इवन num1 इज एन पैरामीटर। ओके, and this 10 and 20 are arguments. Okay, so when we call that function, during that time आप जो मतलब जो भी वैल्यू को पास करते हो, गॉट इट, तो वो वैल्यू को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और जब आपका ये दिस इज अ फंक्शन बॉडी, समझो जैसा मैंने बोला था आपको दो चीज होता है, आपको फंक्शन का बॉडी डिफाइन करना है, दिस इज अ फंक्शन बॉडी। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप पहले फंक्शन का नाम लिखते हो, राइट, इसके बाद आप अपना पैरामीटर्स बोलते हो कि आपको कितने पैरामीटर्स, मतलब जो आप आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हो, कितने आर्ग्यूमेंट मतलब कितने वैल्यू आप पास करने वाले हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टोर करने के लिए लेना होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, 10 को किस में स्टोर कर रहा है, num1 में स्टोर कर रहा हूँ, और 20 को किस कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, num2 में। ओके, लेटर हम क्या कर रहे हैं, इसका हम एडिशन ले रहे हैं एंड वी आर प्रिंटिंग आउट एडिशन ऑफ टू नंबर्स ओवर हियर। ओके, सो अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, एडिशन इज नॉट डिफाइंड, let's do it the smaller one. Okay, the spelling has been wrong. Okay, we have got this over here, right? Now the addition of the number is 30. Perfect. Now I want to make मतलब हमें और एक एडिशन ऑफ टू नंबर लाना था, और we can say 30 or we can say 20 and this, what's wrong, 20 and we can say 30. Okay, and later we can have 50 and 100. Okay, so हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से आर्ग्यू मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये आपका फंक्शन बार बार काम करते जाएगा। देखो, तो फर्स्ट इसमें आपका प्रिंट होगा 30, राइट, फिर उसके बाद आपका प्रिंट होगा 50, 20 प्लस 30 इज 50, राइट, एंड आपका प्रिंट होगा 150 होगा, राइट। सो कैसा होगा आपका, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जाएगा और num1 में स्टोर होगा 10, 20, सम ऑफ देम आर बीन स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल सम, 10 plus 20 is been stored in this sum, then console.log how much it will be, 10 plus 20 is 30, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा वापस, वो देखेगा कि 20 एंड 30 हमने वापस फंक्शन कॉल किया है, तो वापस ये फंक्शन पर जाएगा, राइट, एंड इसमें क्या करेगा, अभी num1 में क्या स्टोर होगा 20 एंड num2 में स्टोर होगा 30, राइट, और इसका एडिशन हमें प्रिंट होगा 50। वापस फिर यहाँ पर आएगा, वापस देखेगा हमने वापस एडिशन को कॉल किया, राइट, दिस इज अ फंक्शन कॉल एज यू ऑल नो इट, राइट। तो इसके बाद हमने वापस पास किया दो नंबर को, 1 is 50 एंड 1 is 100, परफेक्ट, और नंबर में हमारा 50 होगा, num2 में होगा 100, राइट, एंड लेटर हम उसका एडिशन करके सम में स्टोर करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा 30, 50 एंड 100। लेट्स गो एंड सी इट। So addition of numbers 30, 50 and 150. Yes, so have you got this the function, कैसा हम फंक्शन बनाते हैं, सबको समझा है? Yes, yes, have everyone got this function? How has it been working? Should I explain it once again for you guys, or is it fine for you? समझा सबको? Only the two responses. Fine. Apart from this, Jayan Smith, others. ओके, नो वरीज। ओके, सो देखो यूजर डिफाइन में भी ना, हम इसको यूजर डिफाइन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम इसको खुद डिफाइन कर रहे हैं, राइट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको खुद से डिफाइन करके हम उसको कॉल कर रहे हैं, राइट, फॉर दैट कंसर्न वी आर सेइंग इट यूजर डिफाइन। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो एडिशन ऑफ दिस 10 एंड 20, और जब हम कंसोल कर रहे थे, दिस इज आई हैव सेड क्या, कंसोल डॉट लॉग इज प्री डिफाइंड, बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट से पहले से ही डिफाइंड है, राइट। सो हम यहाँ पर ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, राइट। सो ये यहाँ पर भी हम डायरेक्टली एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट वालों ने बैकएंड में लिखा होगा, राइट और हम यहाँ से सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं और वहां पर जाके वो प्रिंट आउट हो रहा है। जैसा हमारा एडिशन के यहाँ से हम क्या कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट देके वहां पर सिर्फ कॉल कर रहे थे, राइट, और वो कॉल करके हमें यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, राइट। तो सिमिलरली हम कंसोल डॉट लॉग से भी यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट वाले जो डेवलपर्स है उन्होंने कंसोल डॉट लॉग के लिए एक फंक्शन लिखा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं, समझ रहे हो? Okay, so this was an example of an predefined one, but don't worry, हम बहुत सारे आगे देखने वाले हैं as well. Okay, so user defined में भी हमारे पास तीन टाइप के user defined ये होते हैं। Okay, हम तीन तरीके से आपका फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो आपका था नॉर्मल वन, अगर आपको नॉर्मल सिंपल टाइम मतलब सिंपल चीज में आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। अभी आपका दो और टाइप के फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइंड में ही,
ओके, तो यूजर डिफाइंड में हमारे पास होते हैं 3 टाइप के. फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल फंक्शन जो हम नॉर्मली ऐसा डिफाइन करते हैं. Okay, the second function we call it as anonymous function and third function we call it as arrow function. Okay, so user defined में भी हम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं. नॉर्मल तो हमने देख लिया कैसा नॉर्मल वर्क होता है, राइट. फिर उसके बाद हमारे पास होता है अनोनिमस फंक्शन, anonymous function. Okay, and what does this anonymous function is, I will let you know in a while. And last one is an arrow function. Okay, the most important one is the normal one. Even all of them are important. Okay, each and everyone have their this क्या advantages, क्या हमें कब यूज करना है कब नहीं. फाइन, विल बी सीइंग आउट दैट इन द फर्दर क्लास, डोंट वरी अबाउट इट. बट हम आज क्या देख रहे हैं, हम कैसा फंक्शन बना सकते हैं वो देख रहे हैं. फाइन, तो हमने नॉर्मल फंक्शन कैसा बना सकते हैं वो देख लिया, राइट. जहाँ पर हम फंक्शन को यहाँ से डिफाइन करते हैं, राइट, और यहाँ से हम उसको फंक्शन को कॉल करते हैं, right. So this is the example of a normal function, right. The second function is an anonymous function. Why do I call the function as an anonymous? Anonymous function has been called because वो function का हमारे पास नाम ही नहीं होता. I will just say function here, okay, and let me just say console.log hello. I will just say hello over here, right. But do I give any this, मतलब ये मैंने फंक्शन को कुछ नाम दिया है क्या? नो. अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना होगा, राइट, इफ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन को हम नाम नहीं देते ना, वो फंक्शन को वी कॉल इट एज अनोनिमस फंक्शन. ओके, बिकॉज वो फंक्शन के पास नाम ही नहीं है, तो अगर उसको मुझे कॉल करना होगा तो हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. तो लेट किसमें स्टोर करते, लेट शो इक्वल्स टू करते, ये एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, बिकॉज ये फंक्शन को मुझे अभी कॉल करना है. तो आप कैसा करोगे इसको, एक फंक्शन ये फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे और ये वेरिएबल में आप उसको कॉल करोगे, तो आप वेरिएबल का नाम लिखोगे और आप फंक्शन को कॉल करें उसके लिए फंक्शन का नाम नहीं है ना, तो आप डायरेक्टली उसको सिर्फ नॉर्मली पैरेंथेसिस एंड दिस मतलब दिस राउंड पैरेंथेसिस आप ओपन एंड क्लोज कर दोगे, राइट. तभी आपका console.log में हेलो आ जाएगा. लेट्स गो एंड सी दिस, सो इट वुड बी ओवर हियर, राइट. सो हमें हेलो आ गया. सो हाउ दिस एनोनिमस फंक्शन इज बिन वर्किंग, आपको पहला ये फंक्शन को कुछ नाम नहीं है, राइट. हमने सिर्फ बोला है फंक्शन और उसको यहाँ पर ये कर दिया, राइट. उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसका बॉडी बना दिया, राइट. एंड टू कॉल दैट फंक्शन हमने क्या कर दिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया शो में, और वो फंक्शन को हमने कॉल कैसा किया, वेरिएबल का नाम और एक फंक्शन है उसके लिए हमने उसको दिस दिस राउंड पैरेंथेसिस से ओपन एंड क्लोज करके उसको बुला लिया, राइट. एंड हमारा क्या हुआ, जो भी हमने फंक्शन में डिफाइन किया था वो यहाँ पर आके प्रिंट हो रहा है. समझ रहे हो, तो दिस इज हाउ अनोनिमस फंक्शन वर्क. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड फंक्शन नोन एज एरो फंक्शन. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये एरो फंक्शन का नाम ऐसा आया बिकॉज इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एरो का यूज करते हैं. ओके, सो इसका बेसिक ये क्या होता है सिंटेक्स, पहला आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम, फिर आपको एरो करा इक्वल्स टू, नॉट एन एरो ओवर हियर, आपको इक्वल्स टू करके इसका पैरामीटर्स लिखना होता है. फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास दो पैरामीटर्स है ए एंड बी, इसके बाद आपको एरो का ए करके आपका बॉडी आपका डिफाइन करना होता है. ओके, एंड ये बॉडी में अंदर आप कुछ भी कर सकते हो. अभी मैं क्या करता हूँ, console.log a प्लस बी करता हूँ. समझ रहे हो, तो दिस इज अ जर्नल. आपका फंक्शन को आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर लिया, आपने उसका बॉडी बना दिया, राइट. ओके, नाउ यू वांट टू कॉल दैट फंक्शन, तो आप नॉर्मली जैसा फंक्शन कॉल करते हो आपको फंक्शन का नाम लिखना है. यहाँ से आपको दो ए एंड बी चाहिए, राइट. तो आप दो नंबर पास करोगे 2 and 3. ओके, एंड यहाँ पर अभी क्या प्रिंट होगा, सी फंक्शन नाम अभी मैंने डायरेक्टली ये दे दिया है. अगर मेरे को सम करना है तो मैं सम कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं सम कर देता हूँ. ओके, फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट डाउन, और एल्स मैं इसको कॉपी करता हूँ फर्स्ट, राइट. इसको कमेंट डाउन करके यहाँ पर हम उसको वापस बुलाते हैं. ओके, सम. ओके, सो बेसिक सिंटेक्स क्या है एरो फंक्शन का, पहला आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है, फिर इक्वल्स टू, देन लेटर आपको जो भी पैरामीटर्स लेने हैं यहाँ से आपका आर्गुमेंट पास होगा, राइट. तो यहाँ पर आपका वो पैरामीटर्स बन जाते हैं, राइट. ओके, सो हमने दो पैरामीटर्स लिए ए एंड बी, यहाँ से हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तो दो वैल्यू पास कर रहे हैं. फिर एरो फंक्शन यूज है इसके लिए, इसका नाम ही एरो फंक्शन इसके लिए दिया है बिकॉज हम यहाँ पर एरो यूज कर रहे हैं. सो इक्वल्स टू एंड दिस ग्रेटर मार्क सिंबल, राइट. और उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस में आपको जो काम करना है वो, तो मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर दिया डायरेक्टली, एंड console.log में क्या करते हैं a प्लस बी.
तो सिंटेक्स आपको समझ गया, उसके बाद आपको फंक्शन कॉल करना है वो फंक्शन को। तो फंक्शन का नाम क्या था, दिस। उसको हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किया है 2 and 3। तो a में 2 आ जाएगा, b में 3 आ जाएगा और इसका एडिशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, राइट। सो हमने वही कर दिया, पहले फंक्शन को बना दिया, फंक्शन नेम सम इक्वल्स टू एडिशन ऑफ दिस a, b। yes, then later what we have done, use of this arrow symbol। yes, and later हमने उसको बॉडी में जो भी हमें काम करना था वो लिख दिया, राइट। द कंसोल डॉट लॉग एडिशन ऑफ a प्लस बी, परफेक्ट। एंड उसको हमने क्या कर दिया, इधर से फंक्शन कॉल कर दिया। लेट्स गो एंड सी हमारा अभी 5 प्रिंट हुआ है कि नहीं। So we have got the five over here, and this is how our arrow function work। okay, and this is the most important because हम जब arrow function use करेंगे, right, तो during that time same logic same syntax use होगा और उसके बाद हम हमारा इधर अंदर कुछ भी काम कर देंगे, right। for now मैं इधर कुछ काम करके नहीं दिखा रहा because मैं अभी आपको मुझे सिर्फ ये समझाना है क्या कैसा क्या आपका ये वर्क हो रहा है। for that reason मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करके बता दे रहा हूँ, राइट। बट इन अ फर्दर मोस्ट क्लास हम यहाँ पर कुछ काम करेंगे, राइट। हम एलिमेंट को ऐड करेंगे, एलिमेंट को रिमूव करेंगे, राइट। हम एलिमेंट को अपडेट करेंगे, राइट। सो वहाँ पर हम फॉर लूप ये सब का यूज करेंगे। ओके, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इवेंट्स बनाएंगे, तब हम फंक्शन को बनाते हैं, राइट। तो फंक्शन कैसा बनते हैं, विल बी यूजिंग द एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, राइट। कभी कभी हम अनोनिमस फंक्शन भी यूज करते हैं। सो विल बी सीइंग दैट ऑल स्टफ। ओके, सो फॉर नाउ आई होप कि आपको जो यूजर डिफाइन में तीनों टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, विच इज द नॉर्मल फंक्शन कैसा डिफाइन करते हैं कॉल करते हो तो पता ही समझ ही गया है। अनोनिमस फंक्शन का भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है आपको, राइट। यहाँ पर इट्स एन एग्जांपल ऑफ अनोनिमस फंक्शन, आई कैन से अनोनिमस। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर अनोनिमस फंक्शन। ओके, अनोनिमस फंक्शन इसलिए बोला है बिकॉज ये फंक्शन का आपका नाम नहीं है और उसको अगर आपको कॉल करना होगा तो आप उसको वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हो, राइट। एंड थर्ड वन वी हैव सीन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का आपको बेसिक सिंटैक्स बता दिया मैंने, राइट। एंड इसके बाद हाउ इट विल बी वर्किंग आई हैव शोन यू बाय एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर। yes, have everyone got this all 3 functions inside this user defined one? yes, सबको समझा है, बेसिक सिंटैक्स सबको समझा है? yes guys, great। okay, let's move out and see the last one, that is user defined के बाद हमारे पास क्या आता है, प्री डिफाइंड। ओके, प्री डिफाइंड में हम थोड़ा बेसिक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम हमारा मैथ्स के फंक्शंस देखते हैं, मैथ्स फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो हम अभी प्री डिफाइंड वन देख रहे हैं। so I can say predefined function example। ओके, जो पहले से हमें जावास्क्रिप्ट वालों ने बना के दिया। तो मैक्स के फंक्शंस विल बी सेम, जो विल बी यूजिंग इट while creating any game or anything, right, so we'll be seeing the maths function जो पहले से defined है। okay, so let us see the first function, that is round function। okay, round function, what do I mean by round? so मेरे पास एक नंबर है, for now आप समझो, let x equals to 4.2। ओके, मैंने क्या किया, एक नंबर लिया है विच इज इन द डेसिमल फॉर्म, राइट। 4.2 एक डेसिमल इसमें, राइट, फ्लोटिंग नंबर है। 4.2 इज एन फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग नंबर मतलब एक डेसिमल नंबर है, राइट। 4.2 नॉट एन होल नंबर, 4 5 ऐसा नहीं है, राइट। तो मेरे को क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। ओके, सो सबको राउंड ऑफ पता है कि अगर 0.5 के ऊपर 0.5 और 0.5 के ऊपर रहेगा तो हमारा राउंड ऑफ होता है 5, राइट, और एल्स हमारा राउंड ऑफ होगा 4। तो अगर हमें ऐसा आपको कंडीशन है जहां पर आपको नंबर डेसिमल में नहीं चाहिए, आपको होल नंबर चाहिए, इधर 4 और 5, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप मैक्स का फंक्शन यूज कर सकते हो इन एन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एक्स को। तो अभी एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, इट वुड बी 4.2 ओनली, राइट। ओके, बिकॉज हमने उसको राउंड ऑफ अब तक किया नहीं है, राइट। इट्स बिन 4.2, 5 तो ऊपर से आ रहा है, सी इसका 5 आ रहा है। ओके, लेट्स डू इट। यहाँ से हमें 4.2 ही आ रहा है बिकॉज हमने इसको कुछ बोला नहीं, डायरेक्टली जो भी नंबर एक्स में था उसको प्रिंट कर दिया। मैं अभी क्या करूंगा, एक ये लूंगा। ओके, आई विल से लेट राउंड ऑफ, एक वेरिएबल ले लिया राउंड ऑफ, उसको मैं क्या करूंगा, मैक्स डॉट राउंड फंक्शन, जो पहले से इन्होंने बना के रखा है। इन्होंने बना के रखा है, दिस जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैव ऑलरेडी मेड दिस फंक्शन। हम क्या करें, यहाँ से उसको कॉल कर रहे हैं, तो मैक्स इज वन लाइब्रेरी, राइट। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, राउंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, सो हमारे मैक्स लाइब्रेरी में ये राउंड फंक्शन स्टोर है, राइट। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन से नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, एक्स को, राइट। तो मैं एक्स कर दूंगा और अभी राउंड ऑफ में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, लेट्स गो एंड सी इट। ओके,
So I will just say console.log x. So let's go and see the output now. So it is 4.2. Okay, it's sorry, it would be round off. Okay, it would be 4 now, right? So we have got 4.2 and 4. 4 क्यों आया? बिकॉज आपको पता है जब राउंड ऑफ होता है तो अगर ये 0.5 और 5 के ऊपर होगा तो वो इसको क्या कर देगा, 4 को कर देगा 5, बट अगर उससे छोटा होगा तो हमारा वो लोअर वैल्यू लेता है, दैट इज 4. ओके, एंड फॉर दैट कंसर्न हमारा हमारा क्या हो गया, x का दिस राउंड ऑफ का वैल्यू हो गया 4. ओके, बट अगर मेरा यहाँ पर है 4.7 तो अभी हमारा ये क्या आएगा, राउंड ऑफ में क्या स्टोर होगा, max dot round 4.7. the 4.7, this 0.7 is greater than 0.5, right? so यहाँ पर क्या स्टोर होगा, 5 स्टोर होगा, राइट? so हमारा आंसर आएगा 4.2 and 5, राइट? सो अगर आपको ऐसा चाहिए, ऐसा आपका कंडीशन है जहां पर आप किससे वर्क कर रहे हो, डेसिमल नंबर्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, या वर्किंग ऑन दिस नंबर विच इज राउंड दिस राउंड ऑफ नंबर, मतलब आपको राउंड करते हैं उसको, मतलब आपको वोल नंबर पे वर्क कर रहे हो, इधर 4 और 5 चाहिए, या तो आपको डेसिमल में ये नहीं चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए इन एन वोल नंबर, राइट? सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन यूज दिस मैक्स डॉट राउंड फंक्शन. ओके, यहाँ पर अभी आपके पास और एक ऑप्शन है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो, मतलब अभी आपको क्या चाहिए, भले ही मेरा 4.2 भी है, देन टू मेरे को क्या करना है, वो हमेशा उसका अपर लिमिट ही वैल्यू लेगा. अपर लिमिट मतलब भले ये 0.2 है बट मेरे को क्या चाहिए, इसका राउंड ऑफ होके वैल्यू चाहिए 5. सो आपके पास फंक्शन होता है सीलिंग फंक्शन बोलते हैं. ओके, सो आई विल जस्ट कॉपी दिस and I will just paste it over here. Okay, and let I will what I will do, I will just instead of this I will just say this max dot seal, और x में अभी आपका वैल्यू क्या है 4.2, बट मैंने सील बोला तो सील विल ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ एन अबाव 1. तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो क्या करेगा, भले ही ये 1 हो 2 हो 0.1 कुछ भी हो, इट विल ऑलवेज कंसिडर द अपर लिमिट. ओके, सो 4 के बाद क्या आता है, हमें 5 आता है, राइट? तो वो क्या करेगा, राउंड ऑफ में दिस 5 विल बी स्टोर्ड एंड हमें जो भी कंसोल डॉट लॉग राउंड ऑफ बोला है वहां पर हमारा 5 आया जाएगा. देखो, भले ही हमारा 4.2 था, राइट? बट मैंने उसको क्या बोला, आप हमेशा सील वैल्यू लो, सील मतलब सीलिंग वैल्यू. ओके, एंड सीलिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो हमेशा अपर लिमिट के ऊपर जाता है. तो मतलब 4 है, ओके, 4 के बाद 0.2 है, तो 0.2 को इग्नोर करके 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो उसको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कर देगा. ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 1, तो भले ही वो कितना भी छोटा नंबर हो, इट विल ऑलवेज टेक द अपर लिमिट ऑफ इट. तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देन टू इट इज बिन 5. ओके, बट आपको क्या चाहिए अभी, दिस इज अ सीलिंग फंक्शन. सिमिलरली अगर आपको ऐसा रहेगा क्या 4.9 आएगा, राइट? बट मुझे क्या करना है उसका, भले ही आपका नंबर 0.5 से अभी बड़ा हो, राइट? बट आई वांट क्या, वो हमेशा आपका फ्लोर वैल्यू ले. फ्लोर वैल्यू मतलब लोअर लिमिट वैल्यू ले. तो भले ही वो 0.5 से बड़ा है 0.9, तो हमारा अभी x में मतलब जो भी आपका राउंड ऑफ है उसमें क्या स्टोर होना चाहिए, इसमें स्टोर होना चाहिए 5, राइट? बट मुझे क्या करना है, उसको 5 नहीं चाहिए, मुझे हमेशा लोअर लिमिट चाहिए. ओके, मुझे हमेशा ये वाला नंबर चाहिए, इसके आगे कुछ भी हो, उसके आगे मुझे कुछ भी हो, आई डोंट हैव एनी दिस, मुझे हमेशा इसके जो पहला नंबर आ रहा है पॉइंट के ये साइड ये नंबर चाहिए. तब आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे floor function. Okay, I will just comment this out, guys. Okay, and during that time I can say I will be using the this, that is the floor function. Okay, तो floor function में क्या बोला, आपका हमेशा पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला वैल्यू ले लेगा. ओके, इट विल ऑलवेज टेक द लोअर लिमिट वैल्यू. ओके, सो हमारा आंसर अभी क्या आएगा, इट विल बी 4 सी, even though it is 4.9 which is greater than 0.5, right? But n2 it is taking the this value, that is ceiling value, not in ceiling value, floor value. Yes, this is how we can take the floor value. Now if you want to do the power of two number, what I do I mean by the power, मतलब आपको raise to something करना है, right? So during that time you can use this function known as power. The max that power we can say, so I will say let's power equals to, I can say max dot power, और यहाँ पर आपको दो नंबर अभी 2,3 पास करूंगा. सो मुझे कंसोल डॉट लॉग में आएगा 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8, राइट? जब हम 2 रेज टू द पावर मतलब 2 रेज टू 3 करेंगे तो हमें क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8, राइट? तो हम अगर पावर को कंसोल करेंगे, राइट, तो आंसर हमें क्या आएगा अभी 8. लेट्स गो एंड सी इट. 4.9 वी हैव गॉट इट फ्रॉम अबव, राइट? वी हैव गॉट इट फ्रॉम हियर. बट मैंने क्या किया, मुझे अभी क्या करना था, रेज टू, मुझे समथिंग रेज टू समथिंग करना था, राइट? तो मैं क्या किया, अभी 2 रेज टू 3 किया तो आंसर क्या आया 8, राइट? अगर मैं यहाँ पर करूंगा सी 10 रेज टू दिस
Okay, if I do, अरे why is it so? 10 raised to comma 5, तो 10 comma 5 means 10 raised to 5 कर रहे हो. Okay, so 10 raised to 5 would be how much? It would be 5 times 0 means 5 times this, which will be 1 lakh over here. राइट, जब आप 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या वैल्यू आएगा ऑफ दिस. तो पावर फंक्शन आप कब यूज करोगे? जब आपको रेज टू समथिंग करना होगा. ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पावर फंक्शन. यस. नाउ अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, राइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस रैंडम फंक्शन. Okay, see if I do, let I can have this variable, and if I say max dot random this. Okay, and if I do console dot log, if I do console dot log random random, right, if I do console dot random, now I'll be getting the value. Okay, 127 max dot random. Yes, so what we are getting, so let's go and see it. क्या कर रहे हैं? Random is your variable. Yes, and we are just consoling it over, and we are calling this function max dot random from here. Okay, so random क्या करता है? Basically random function आपको क्या करेगा? आपका 0 to 1 के अंदर एक random number ये करके देता है. Okay, and I can just say a over here. A over. Let's see is it's working now. I won't think it would. It's been working. Fine. वो random I guess it would be one this. क्या? ये पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है, राइट. एज स्टडी वी हैव सीन क्या बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं पहले से प्री डिफाइंड हो, राइट. जहां पर हमने नेम भी देखा था तो स्ट्राइक आउट हो गया था, राइट. ओके, सो फॉर दैट रीजन इवन द रैंडम इज बिन पहले से प्री डिफाइंड वर्ड. ओके, फॉर दैट कंसर्न हमें कुछ ये आ रहा था, राइट. सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना हो, राइट, ओके, सो वी कैन यूज दिस रैंडम फंक्शन जो आपका वैल्यू देगा. देखो यहाँ पर वो आपको वैल्यू देगा 0 से 1 तक. ओके, वो उससे बड़ा नहीं देगा, बट उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हाउ यू कैन डू इट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ. यस, तो इसका आउटपुट आपको देखोगे आपको हमेशा अलग अलग आता रहेगा. सी, we have got how much 0.7478 this, right. Let us refresh the page. 0.646, let us refresh the page. 0.424 this way, right. रिफ्रेश हमेशा हमें क्या आ रहा है? 0 और 1 के बीच में हमें वैल्यू आ रहा है. बट व्हाट आई वांट, अभी मुझे चाहिए 0 और 10 के बीच में वैल्यू. तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 10. Okay, so now I'll be getting the value starting from 0 and it will be C. Let me reload the page. 7.33. Reload the page 3. Okay, but now I want कि ये मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए उसका मतलब एक वोल नंबर चाहिए. तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं एक सीलिंग फंक्शन में बंद कर दूंगा. ओके, सो आई विल से मैक्स डॉट सील. ओके, इसके अंदर मैं इसको रैंडम फंक्शन को पास कर दूंगा. तभी हमें हमें क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा 0 से 10 तक. ओके, एंड सी ले तो हमेशा अगर 0 पॉइंट आएगा देन टू वो 1 वैल्यू रहेगा, तो 1 से 10 तक अभी हमेशा वैल्यू आता रहेगा. सी 4 8 9 6 10 6 2 8 so on. Okay, so in this way how we can use the this random function and we can generate this. Okay, अगर मैं यहाँ पर 100 करूंगा तो अभी मुझे 0 से किधर तक आएगा, 100 तक. 1 से 100 तक आपको वैल्यू आएगा. सी 97 11 98 91 18 so on. ओके, सी यहाँ सर आप डिफाइन करो तो आपको कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए. यस, सो हैव एवरीवन गॉट दिस मैक्स फंक्शन. यस, तो मैक्स में हमारे पास और भी होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, राइट. एंड यहाँ पर हमारे पास और एक होता है स्क्वायर रूट. ओके, लास्ट वो देख लेते हैं. ओके, सो हमारा मैक्स का सब फंक्शन भी सब हो जाएगा, राइट. एंड हम हमारा फंक्शन हमारा क्लियर आउट कर देंगे, राइट. सो लेट्स गो एंड सी दैट फर्स्ट. ओके, सो हमारे पास रैंडम फंक्शन आपने देख लिया. अभी हमारे पास होता है स्क्वायर रूट फंक्शन. स्क्वायर रूट मतलब अगर आपको कुछ स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आई विल जस्ट सेलेक्ट x equals to max dot sqrt and I will say I want to take see what's the square root of 10. तो 10 का square root क्या है, it will be 10, right. okay, so I will just say console dot log x. तो हमारा आएगा आंसर 10. सी, हमारे पास आंसर आया है 10. ओके, सो अगर आपको कौन से भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप मैक्स डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज कर सकते हो. ओके, अभी नाउ इफ यू वांट टू हैव
मतलब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, इफ आई हैव द मिनिमम नंबर मुझे निकालना है इसमें से, तो -2 4 6 1 0, ओके वी हैव गॉट दिस नंबर, ओके एंड मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स, परफेक्ट। सो अभी हमारे पास इसमें से सबसे छोटा नंबर, बिकॉज हमने मीन यूज किया तो हमारा मिनिमम नंबर रिटर्न होगा, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -2, तो हमें हमारा आएगा -2 होगा, राइट। अगर सिमिलर आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है, सो आई कैन जस्ट राइट मैक्सिमम ओवर हियर, ओके। सो अभी क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम नंबर 6 विच इज ओवर हियर, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन मैक्स फंक्शन, जहाँ पर हम हमारा मैक्स में जितने भी फंक्शन होते हैं वी हैव सीन इट ओवर हियर, yes, which is known as predefined function, which already been defined by an JavaScript developers. Yes, have everyone got it now? Yes, have everyone got it? How can we declare function? What are the different types of functions? Yes, normal function, anonymous function and arrow function. Syntax आपको समझा है, right? And उसके बाद हमने predefined और user defined function क्या होता है वो सब भी देख लिया. Yes, have everyone got it, guys? Yes, yeah. So yeah, that's all for today. Okay, in our further class we'll be seeing what are arrays, then we'll be seeing objects, okay, an array of objects, ये सब हम देखेंगे एंड उसके बाद हम हमारा डॉम पर शिफ्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। एंड वो जब हम सीखेंगे तब हमारा इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट वाला इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर हम हमारा इवेंट्स के थ्रू काम करना देखेंगे, जहाँ पर हम हमारा एलिमेंट्स को कैसे डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, वो सब देखेंगे, फाइन। बट नाउ वी आर जस्ट कवरिंग आउट द बेसिक वन, जहाँ पर हम फंक्शन कैसा बनाते हैं वो सब देख रहे हैं, फाइन, ओके। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ओके लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।